Okay, so any questions from the previous sections? जो हमने block MPC organizations behavior. Uh, this subject is we are teaching studying about organizations behavior, right? So block one. Yesterday we have discussed about different aspect of what is organization's behavior, right? And what is difference between objective and basic background of the organization's behavior. Objectives kya hai? Then we have discussed all the difference between the metaphors, right? Metaphors of organizational behavior, scope of organization's behavior, right? Uh, and also what is difference between organization psychology and organizational behavior? What are the scope, right? So any questions if you have, please. कोई questions है from previous sections? You can. So you know that unit one, right? Organization psychology we have discussed so far. Uh, you can see introduction of organization behavior, organization psychology, which we have discussed. What is organization? Organizational metaphors, right? So organization play a role as a machine, as a organism, as a brain, culture, political system, psychic prison, flux transformation, and instrumentation of dominance. So these are the aspects we have covered yesterday. And what is organizational psychology, right? Then organizational psychology and organizational behavior. Then there are scope of organizational psychology, which we can work on further, like as a psychologist or as a expert, you can work on this area: work motivation, job satisfaction, organization commitment, organizational justice, leadership, group behavior, work stress, right? Organizational culture and development, productive and counterproductive, and work-life balance. Okay. So these are the scopes which I have discussed yesterday, right? Apart from that, we have importance definitions, right? Which we have discussed about the various uh, organizations behavior. So organization field जो है, organization behavior is not only the one field, it is a multidisciplinary approach, right? So organization psychology, when you are a multidisciplinary, means there is a psychology, sociology, anthropology, everything is into it, and everything is being studied. Okay, sociology, psychology, political science, many things are involved into it. Okay. Then it is a systematic study and scientific study of individual and group and organizations, right? So it is very easy to understand, but it is very difficult to practice organizations behavior. So goal of organizations behavior, you can see here described, understand, predict, and control, right? So that is there. So describe, as I said, whenever there is a problems occurrence, ठीक है, तो उसको पहले हम डिस्क्राइब करते हैं क्यों हुआ, क्या है, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन प्रेडिक्ट, देन वी हैव टू मैनेज. ठीक है. Then characteristic of our field of organizations behavior today. So today organizations behavior is a multidisciplinary approach, right? Which different aspect, different segments where we can include and utilize. So OB6 here, like betterment of human resource, right? So how to use the better human resource, better productivity, better performance, better growth of the organizations. Then OB uses as a contingency approach. Contingency matlab situational. Okay, when there is a situational based the analysis or dimensions we can do. OB has a multidisciplinary focus. As I said, it is a multidisciplinary, not only the one area.
which work upon, right? Then organization's behavior, or we recognize organization as an open system. Okay. The open system means we need to create a proper, when you are regulating behavior, when you are understanding the behavior, we need to create an open system where we can work appropriately. Okay. So we adopt the cross-cultural approach. Cross-cultural approach means जहाँ पे different culture, different department, we can collaborate or integrate, right? So organization behavior agar in Indian context, so it is very, very relevant, not only Indian context, it is everywhere, irrespective of culture, religion, caste, creed. So behavior are remain same, right? People have a different they have a conflict, they have different typical behavior are always there, but we need to replications or this enactment, similarly integrations. These are the important aspect in Indian context, how you replicate the behavior, how you observe, how you understand replications in the on the other end, whether the behavior the person is realize, visualize, okay, then only the behavior can be changed. Okay. So this is important, and hobby uses contingency approach. So contingency approach in the sense the situational, like whenever there is any uh, sorry. So I was discussing about replications, then this enactment, right? When there is a problem, so how do you understand this problem in right, and to define the problems and all, then only you try to integrate, right? So then importance of organizations behavior. Okay, so these are the things we have discussed. Then unit 3 is nature of the people, how people's behave, how people's thinks, right? So nature of the peoples is basically individual differences क्या है लोगों में, क्योंकि they have a different thinking, different perceptions, and different personality, different interest, different है ना? Learning style, motivations are different. So therefore, individual differences are there. Within that differences, how can we work as a united, cooperated with each other, collaborate with each other, right? And finding the solution. Okay, finding the solution. Similarly, the person has a differences in all aspects, similar different in a person's, right? Then whole persons, you can see the personality of the persons, right? Then motivated, how the person has a primary need, क्योंकि जब मोटिवेट होता है तभी वो कोई काम करता है, ठीक है ना? इट कैन बी अ प्राइमरी, सेकेंडरी, कोई भी मोटिव्स होती है. देन वैल्यूज ऑफ द पर्संस, वैल्यूज मीन्स ह्यूमन डिग्निटी, क्या डिग्निटी है, वैल्यूज हैं, वो इम्पोर्टेंट है. Then nature of organizations wills basically social system. So organizations which always work like a, typically it is a social system where the people can work, when the people can interact with each other. Then types of organizations. Type of organizations means there are different types. जैसे मैंने कहा family as a organizations, social organizations, religious organizations. These are the social organization. And third type of organizations where you can business organization, right? तो फैमिली तो कहीं पे भी आपको ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर नजर आएगा, हर जगह इसका एप्लीकेशंस है, implications है. As a psychologist, you can see. For example, family is very very important. मान लो कोई एम्प्लॉई आपका मोटिवेट नहीं है, या डिप्रेशन में है, या एंजाइटी में है, ठीक है? मान लो क्यों हुआ है, क्योंकि घर पे वो लड़ाई करके आ गई, वाइफ से नहीं पटी, लड़ाई हो गई घर पे, और वो स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस कहाँ ले आया, ऑर्गेनाइजेशंस में. फिर क्या वो उतना ही फोकस और कंसंट्रेशन या कोई जस्टिस कर सकता है काम को? नहीं कर सकता, क्योंकि घर की लड़ाई आ गई, या घर से ऑफिस की जो तनाव है, जो माहौल है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो अगर घर पे लेके जाएगा, ठीक है, सो दैट विल द इम्पैक्ट. ठीक है. सो देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड different types of organizations where people are
living in, how they will manage, how they will equip, so that everywhere he can work effectively. Because ultimate goal of the organizations is not only improve the profit productivity, also happiness, well-being, or contribute to the society, contribute to the environment. ठीक है, all the aspects to be there. ठीक है, तो हम 360 डिग्री उसका एस्पेक्ट्स को डेवलप करेंगे जब जब होता है हमारी सोशल सिस्टम के अंदर, राइट। एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में हम हर लेवल की चीजों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फैमिली, जैसे ऐसा वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर क्रिएट करना है और नेचर अंडरस्टैंड करना है, सो दैट एम्प्लॉय फील हैप्पी। जब आए ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, कोई स्ट्रेस नहीं है, काम किया, कंप्लीट करिए और घर जाए। घर में भी तो अल्टीमेट गोल है कि हैप्पी। अगर हम उसको स्ट्रेस फ्री रखेंगे, ठीक है, हैप्पीनेस विल बी देयर, then the productivity also increase, social harmony will be there, right? So it is the, therefore people are engaged with the organization, तो ऑर्गेनाइजेशन के बिना ही नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी आपको ध्यान देना है, अंडरस्टैंड करना है, जानना है। देन ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम शिफ्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम शिफ्ट मीन्स पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम ऐसे पढ़ लेते हैं, नाउ इट इज आई थिंक मेजर कंपोनेंट्स, राइट, जहां बिहेवियरल कॉम्पिटेंस, नाउ इट इज the shift has changed. It is really importance for any business entity, any business organizations. This is really challenge where the importance of organizations behavior and behavioral competency, right? It is directly proportionate related with the profit and productivity performance of the organizations, right? तो नाउ पहले इतना ध्यान नहीं देते बिहेवियर है, कौन पढ़ता है, क्या है, क्योंकि हमारी जैसे एजेस, एक एज था जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही थी, जहाँ पे सर्वाइवल के लिए लोग जी रहे थे, जो कितने भी पैसा मिल जाए लोग सर्वाइवल के लिए। एक टाइम आया जहाँ पे लोग है ना सर्वाइवल के लिए पहले जीते थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिस टाइम पे है, एंड उस टाइम पे देन एज आया, एक एज आया जहाँ पे पीपल आर लिविंग फॉर, उनकी सारे नीड फुलफिल हो गए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। ठीक है, फिर एक एज आया इंफॉर्मेशन, राइट। आज के टाइम पे जैसे इंफॉर्मेशन कहीं पे, आज आप देखोगे इट इज लाइक ए डिजिटल एरा। ठीक है, तो इस टाइम पे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एवरीथिंग इज देयर। तो इस टाइम पे लोगों की जो बिहेवियर है, सोच है, आप उसको बाइंड करके, आप अगर पार्टनरशिप कोलैबोरेशन अगर मोड पे नहीं काम करते हो तो पीपल लीव, क्योंकि द प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, राइट। दे आर नॉट लिविंग फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ऊपर अब लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें को देखना है। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट। ठीक है, so that is the main concern. What are the organizational output in the terms of profit, huh? In terms of profit, in terms of result, in terms of effectiveness, we need to look into how behavior is contributing. Then holistic organizational behavior. Holistic organizational behavior is basically talking about overall effectiveness in the organizations. So these are the aspect in unit 3. Then unit 4. Unit 4 is talking about the model, different models of organizations behavior. So where we can discuss the different model, like you can see here, the autocratic model, custodial model, supportive and casual model. So nowadays जो information age में बात करता है, people are looking for like this. ठीक है, if you have a partnership, है ना, partnership अगर model है ना, entrepreneur या partnership, then only people will or work with you. ठीक है, employee as a partner of the organizations. ठीक है, तो this kind of approach now organization will survive. ठीक है, now autocratic model to custodial, supportive and the partnership. ठीक है, so that how the transition has happened and maximum output and results come through the causal models, right? So these are the unit we have
covered so far last unit. If you have any doubt, you can ask. Yes. कोई डाउट है तो पूछिए. Yes, any doubt, anything you want to ask? Hello. नहीं सर, मेरे को तो कोई डाउट नहीं. चलो बहुत बढ़िया है. Anyone? नहीं सर, कोई डाउट नहीं. ठीक है. मेरे ना कल का अटेंडेंस हमने अटेंडेंस नहीं लिया तो अटेंडेंस का लिंक मैं भेज दूंगा. ठीक है, गूगल फॉर्म है, so you can fill it up, right? Anything else? सर आप ग्रुप में डालोगे अटेंडेंस वाला शीट? अभी नेक्स्ट क्लास में मैं डाल दूंगा. ठीक है, अभी हम लोग इसको करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हाँ क्लास. ठीक है. ओके, नाउ मूव टू द टुडे सेशंस. ठीक है, आज का जो है आपको यूनिट ब्लॉक 2. ठीक है, ब्लॉक 2 के अंदर यूनिट ब्लॉक 2 के अंदर आप देखोगे यूनिट 1 के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन है. ठीक है, एंटायर जॉब सेटिस्फेक्शन इज टॉकिंग अबाउट हियर. ठीक है, अनदर एस्पेक्ट. Then second is work motivations, unit 2. Unit 3 is a motivations की theories, content theories and process theories, and schedule of reinforcement. Then fourth unit is organization commitment. ठीक है, so these are the aspects. The job satisfactions, if we'll talk about unit 1, what is job satisfactions? कोई बताएगा job satisfaction क्या है? तो इसमें ये सब पढ़ना, जैसे नेचर ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, हिस्ट्री है ना, मीनिंग ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ये तो है ही है. तो कुछ एक डेफिनेशंस यू कैन ऑलवेज रेफर, राइट हियर. सम डेफिनेशन: जॉब सेटिस्फेक्शन इज ए इमोशनल रेस्पॉन्स टू ए जॉब सिचुएशन, or maybe job satisfaction means a pleasurable or positive emotional state resulting the from appraisals of one job or experience. ठीक है, तो these are the job satisfactions. अगर आप देखोगे there are many definitions. Job satisfaction is a attitudes towards the job where which manifests itself the job evaluations of the job and of the employing organization as a contribute suitably to attainment of one's personal objective. ठीक है, तो बेसिकली वी कैन से ग्रेटिफिकेशन, फुलफिलमेंट, है ना, towards the job, right? So these are the job satisfactions, and job satisfaction is very very important in the organizations. If there is no job satisfactions, then employee little bit disappointment or demotivated. So 100% fully they will not work, they will not follow 100%ly. There will be a challenge, right? So job satisfactions can thus be understood as important about the job attitude. So therefore, the person should feel about, right? So there are several factors in job satisfactions, right? Many components are there in job satisfaction. It may be salary हो सकता है, work environment है, culture है, infrastructure, resources, content of the job itself. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जॉब के अंदर, राइट? तो जॉब बेसिकली अगर हम एटीट्यूड्स की बात करें, यहाँ कॉग्निटिव, अफेक्टिव कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल. सो दीज कंपोनेंट्स ऑफ attitudes
always influence the behavior, right? So that you need to, I feel good about my job, right? So that you need to feel that kind of contentment with the job. Then how do you bring that? So first of all, I think the leadership is very, very important in the organization. I always emphasize on the leadership. The quality of leadership will help the things. और जॉब सेटिस्फेक्शन, और जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपका रिजल्ट जो कमिटमेंट है या एंगेजमेंट है जॉब में, ठीक है, वो नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग जॉब सेटिस्फेक्शन इसीलिए क्योंकि कोई जॉब के अंदर जो बेसिक प्राइमरी थिंग है तो उसको डिजाइन हमने सही ढंग से नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ है कि अपने रिसर्चर ने दे रखा है, आपने देख सकते हो यहाँ पे, स्मिथ, कैंडल एंड हॉलिंग हैव सजेस्टेड 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब जो इन्फ्लुएंस करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को। एक तो है वर्क इटसेल्फ, ठीक है, जो काम है, काम के अंदर कितना अपॉर्चुनिटी है, कितना लर्निंग है, ठीक है, एंड द चांस ऑफ एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो चीजें जॉब इंपॉर्टेंट करता है। देन पे, कितना फाइनेंशियली पे मिल रहा है, और इक्विटी, जो सैलरी मिल रहा है वो जस्टिफाइबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी होगी पे सिस्टम में, या पे पैकेज एडिक्वेसी है, इंफॉर्मेशन, सो दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तब जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। पहले तो वर्क इटसेल्फ, मतलब कोई कंटेंट जो आप काम कर रहे हो इंटरेस्टिंग है, अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग है, ठीक है, एक ये है। दूसरा है पे, ठीक है। तीसरा है प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, क्या जो मैं काम कर रहा हूँ आगे अगर मैं मेहनत करूंगा क्या मेरे को प्रमोशंस मिलेगी, कब मिलेगी, क्या क्लियर रोड मैप है। तो वो चीजें अगर नहीं है जॉब में तो दैट इज इम्पोर्टेंट। देन सुपरविजन, आपकी लीडर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी बिहेवियरल सपोर्ट, है ना, या कोई भी काम कर रहे हो तुरंत आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे क्राइसिस सिचुएशंस में, तो इट इज अनदर लीडरशिप जो मैं बात कर रहा था। देन फिफ्थ पॉइंट इज को वर्कर, आपकी जो को वर्कर है, डिग्री टू व्हिच द फेलो वर्कर्स आर टेक्निकली प्रोफिशिएंट एंड सोशली सपोर्टेड। तो को वर्कर्स आपकी कैसे हैं, अगर एफिलिएशंस हैं उनके साथ अच्छा है, देन इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। एक मिनट, आई टेक ए मिनट ब्रेक। Hello, hello, am I audible? Yes, sir. So I hope these points are very self-explanatory and clear, right? So these are the major factors. We need to work upon that, how to create job satisfaction. Then definitely extrinsic और intrinsic need होती है हर individual की, ठीक है। तो उसको अगर उसके ऊपर अगर हम काम करें, उसके ऊपर पॉलिसी बनाएं, तो इट विल क्रिएट ए जॉब सेटिस्फेक्शन। यस, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? सर वो मैंने नंबर ड्रॉप कर दिया है सो दैट न्यू पीपल कैन मैसेज फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप। अच्छा, किसका नंबर ड्रॉप किया आपने? सर मेरा मेरा अच्छा, ठीक है, ठीक। Okay, so extrinsic and intrinsic job satisfactions you can see, right? Where therefore there are two theory. अगर आप देखोगे हर्जबर्ग theory है ना, मोटिवेटिंग फैक्टर और हाइजीन फैक्टर, राइट? अभी हम पढ़ेंगे वो थ्योरी, वो हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन। इसीलिए मैं कह रहा था ना, ये सारे कंटेंट जो है ना आगे पीछे हैं। देखो अभी आप मोटिवेशन थ्योरी नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हर्जबर्ग थ्योरी का
आ गई बात, ठीक है। तो यू विल स्टडी राइट हर्जबर्ग थ्योरी। तो वो मोटिवेशन आपको इंस्टिंक्टिव एंड एक्सट्रिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव मतलब द लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग या कंडीशंस ऑफ वर्क, राइट। सो दीज आर द पे तो नहीं, कंटेंट ऑफ द जॉब, ठीक है, आपको पसंद आता है वो काम कर, तो दीज आर द इंस्टिंक्टिव सेटिस्फेक्शन और एक्सट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन। देन मेजरमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, मेजरमेंट क्या है? Now, measurement के लिए we have a tools. How do you measure the job satisfaction? There are many scales are there. Job satisfaction index, Minnesota satisfaction questionnaire, right? Then, okay, Minnesota questionnaire, job satisfaction survey, job satisfaction index, job in general scale. So these are the tools where the different psychologist author has developed their scales where you can measure the job satisfaction. So I'll not going into details, but these are the tools which can use for job satisfactions. Then incidents of the job satisfaction. So major factors, चाहे personal factor, जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। जितना एज बढ़ेगा आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती है, तो उस हिसाब से जॉब सेटिस्फेक्शन कमेगा और घटेगा। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा टाइम तक रुक जाता है तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो वो भी जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। जेंडर, मेल एंड फीमेल, जैसे वीमेन अगर कम पैसा मिल रहा है, सैलरी है, फैमिली भी देखना है उनको, वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मेल हमेशा they think that they less, and vice versa, women are paid less than men आज की टाइम पे। now it is also changing, right? and few केस में, जैसे स्कूल की मैंने देखा था, टीचर्स हैं उनको कम सैलरी भी दे रहे हैं, they are happy with that, right? they think that they are managing family and sometimes this is a additional income for them, ठीक है। तो जेंडर वाइज also you can think that. then occupational label, which occupation, अगर आप ज्यादा हायर जॉब है तो ऑक्यूपेशनल लेवल आपकी उसी हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर्स वो उसी हिसाब से आपको मिलता है। तो ऑक्यूपेशनल लेवल इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे हायर एजुकेशन, जितने आप एजुकेशन हाई पढ़ाई करोगे उस हिसाब से सैलरी भी मिलता है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। लेकिन आज की कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, एवरीबॉडी वांट्स टू डू सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब चाहिए। इवन higher education PhD candidate also applying for a peon jobs, right? They want, क्योंकि because of unemployment and they never think beyond the job, ठीक है। तो आज के टाइम पे जितना टाइम जो यंगस्टर बर्बाद कर रहे हैं अपना जॉब में, जॉब की लेने के लिए, उससे अच्छा कुछ बिजनेस कर ले, कुछ अर्न कर ले, दे कैन अर्न मच बेटर देन एनीथिंग एल्स, राइट। तो एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई तो ठीक नहीं है कि सिर्फ जॉब करना है, यू कैन डू ए एंटरप्रेन्योर यार, बिजनेस। आप एक काम करो तो आप एक एजुकेशन लेने के बाद एक सिस्टमेटिक वे में बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो और आप कुछ और काम कर सकते हो जो आपको सही लगे, जो आपकी इंटरेस्ट है, ठीक है। नॉट ओनली बिजनेस, इवन जॉब इटसेल्फ ऑल्सो, ठीक है। आप जितना हायर एजुकेशन से अच्छा होगा, आपकी एजुकेशन पढ़ाई करिए, अपने नॉलेज स्किल्स एक्वायर करिए, दैट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन विल इम्प्रूव ओवरऑल development of the person's knowledge, skills and attitude. So that's also important. Then personality, right? तो पर्सनालिटी अनदर एस्पेक्ट है जो ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे बिग 5 पर्सनालिटी हो गया, एट्रीब्यूट्स एंड कोर सेल्फ इवैल्यूएशंस इंडिकेट। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी। तो आप किस तरह की पर्सनालिटी है उस हिसाब से आपको जॉब सर्टिफिकेट। बहुत सारे सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं, सेल्फ इनिशिएटिव हैं, तो उनको काम में वाई कैटेगरी जैसे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है सैलरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो बिग 5 में कौन सा ट्रेड है, कॉन्साइटियसनेस, राइट। तो हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। इसी तरह इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जो इंटरनली लोकस ऑफ कंट्रोल ड्रिवन है वो हाई जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। तो इसी तरह आपको देखना है लोकस ऑफ कंट्रोल, है ना। तो पर्सनालिटी प्लेज ए मेजर रोल। देन कल्चर, ठीक है, डिफरेंट कल्चर है वे, देयर आर वेस्टर्न कल्चर,
Indian culture, Eastern culture, so ASEAN culture. So culture also impact the पर्सनालिटी एज पर, क्योंकि वहाँ पे जो पे पैकेज है, इंडिया में पे पैकेज है डिफरेंट है, ठीक है, एंड उनकी वर्किंग स्टाइल कंटेंट वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द, तो कल्चर फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द थिंग्स, राइट. देन वर्क सिचुएशन इटसेल्फ, मीन जो काम है उसको कितने अच्छी तरीके से आपने डिजाइन किया, इंटरेस्टिंग है कि नहीं. जैसे जॉब रोटेशन है, अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हियर. जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, ये जितना आप इसके साथ आप इसको करेंगे तो कंटेंट आपकी अच्छा हो जाएगी, ठीक है. और जो जो जिसके लिए जिसका जो एक्सपर्टीज है उस हिसाब से वो काम करे, देन यू विल गेट द ऑटोनॉमी, फ्रीडम, ये सब चीजें मिलेंगे आपको. तो एक थ्योरी है ओल्डहम हैकम की, तो उसने ये 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब उन्होंने बताया था, पढ़ना. तो उसमें उन्होंने बताया था जॉब को हम जैसे 5 चैलेंजेस, ऑटोनॉमी, वैरायटी, स्कोप्स, ये सब देंगे तो जॉब कंटेंट अच्छा हो जाएगी. देन पे पैकेज जो है हमेशा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए. अगर आप कम दे रहे हैं लोग छोड़ेंगे, जाएंगे, फेयरनेस नहीं है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट. देन प्रमोशन जो होगा, जैसे एक लानको कंपनी था तो उनका बहुत सारे कंपनियों में है, जैसे कि आपका जो पे पैकेज है, ठीक है ना, उनका पूरा दायरा, मतलब जो आपको अगर एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करते हैं 5-6 साल, 7 साल, 8 साल या 9 साल, 10 साल के अंदर यू कैन बिकम सीईओ ऑफ द कंपनी. तो इस तरह की प्रमोशन की ले डाउन क्लियर कट होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, वर्क ग्रुप किसके साथ काम कर रहे हो, वर्क कंडीशंस, है ना. तो दीज आर द मेजर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन outcome of the job satisfaction, the model is called here in one model like exit, voice, and legal, and neglect, okay. So this model is very very crucial, right. You can see here this is a model for. तो एग्जिट का मतलब है जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग छोड़ के जा रहे हैं, एग्जिट इंटरव्यू, दैट टाइम यू कैन टेक द पीपल्स वॉइस, राइट. देन वॉइस, क्या लोग अंदर बाहर कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, पॉलिसी के बारे में, है ना. लॉयल्टी, कितने लॉयल है कि नहीं, तो प्रॉब्लम सो एंश्योर करना है. देन नेग्लेक्ट. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच इज important. And even people leave your organization, they will try to exit very peaceful another job. Voice also, they are loyal. So these are the aspects which improve the job satisfaction. If you look at this point thoroughly, work upon it, right. Then job performance, right. तो job performance क्या है ना, job performance आपको जॉब परफॉर्मेंस मीन्स हैप्पी वर्कर जब होगा, हैप्पी प्रोडक्टिव वर्कर, ठीक है. तो हैप्पी वर्कर इज अ प्रोडक्टिव वर्कर. सो देयरफॉर जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब जो है परफॉर्मेंस है उसको आपको अच्छा करना है, राइट. तो जॉब परफॉर्मेंस विल कम थ्रू द ओनली जॉब सेटिस्फैक्शन. एंड व्हेन देयर इज अ लेस जॉब सेटिस्फैक्शन, देयर इज नो जॉब सेटिस्फैक्शन, देन विड्रॉल बिहेवियर, ठीक है, देयर क्रोनिक एब्सेंस आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है. तो विड्रॉल बिहेवियर, पीपल will not take initiative, ठीक है, when there is a job dissatisfaction. Then workplace deviance behavior. Workplace deviance behavior is a counter antisocial behavior when there is a जो पॉलिटिक्स करना, दूसरों को कहेंगे तुम यहाँ क्यों आए हो जॉब में, तुम छोड़ के जाओ, कोई ज्यादा काम कर रहा है उसको कहेगा तुम मत करो काम, नया लोगों को, ठीक है, इस तरह. देन सेफ्टी परफॉर्मेंस, राइट. एक्सीडेंट काफी होगा अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो, ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो चैलेंज. दे विल स्लो डाउन योर वर्क, है ना, स्ट्राइक, वेस्टेज करेंगे. देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. दे विल नॉट हैंडल कस्टमर अप्रोप्रिएटली, ठीक है. तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है. Then life satisfactions, right. Job satisfaction lead to the life satisfaction. If there is no job satisfaction, then it is again you will find out the different aspect of the
job which dissatisfied in the work, right? So these are the things which we need to understand. Let us sum up. Job satisfaction is important attitudinal behavior variables, both organizations research and in applied setting. So it understood individual effective reactions his or her job and can suitable a global facets of the job. So therefore, job satisfaction is another important aspect which need to be developed. And okay, right? Any doubt? Anything you want to ask here? कोई डाउट है कुछ पूछना है? हेलो. No, sir. No, no, sir. No, sir. ओके. नाउ वर्क मोटिवेशन. इसी तरह जॉब सेटिस्फेक्शन जैसे मैंने कहा, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए भी मोटिवेशन होना जरूरी है. तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा मोटिवेशंस. तो मोटिवेशंस इज अनदर इम्पोर्टेंट. लाइक आप घर पे हो, कोई भी हो, इवन पर्सनल लाइफ में भी कुछ काम पर्पस होनी चाहिए, मोटिवेशंस होनी चाहिए काम के लिए. एंजॉय करने के लिए भी आपकी एक पर्पस पॉजिटिव आउटलुक होनी चाहिए. तो मोटिवेशन इज ऑलवेज देयर व्हिच ड्राइव्स अस. ठीक है, हमारी फ्यूचर बिहेवियर के लिए, काम के लिए, हैप्पीनेस के लिए. तो मोटिवेशंस तो हमेशा चाहिए ही चाहिए. ठीक है, उसके बिना आप एक रोबोट हो जाएंगे. तो मोटिवेशन इज ऑलवेज देयर, राइट. तो इसमें आप देखना है बहुत सारे मोटिवेशंस की थ्योरीज हैं, फैक्टर्स हैं, राइट. यहाँ पे देखो, ये प्रोसेस ऑफ मोटिवेशंस लाइक नीड ड्राइव इंसेंटिव, ये 3 तरह साइकिल चलती है. नीड्स मींस फिजियोलॉजिकल, कोई भी नीड्स होनी चाहिए, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल, है ना. तो डिप्राइव नीड होगा तभी लोग काम करते हैं. जो अगर चाहिए, अगर मेरा मान लो मुझे भूख लगी है तो मैं खाना ढूंढूंगा, मेरे भूख नहीं है तो मैं क्यों ढूंढूं खाना. ठीक है, आई हैव ए फुल ऑफ थिंग. तो नीड पहला होना जरूरी है. देन ड्राइव इज बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड towards you can put your efforts to getting the things. Then incentive is basically to achieve the restore balance between the things need and drive, and balancing between the things like you are eating food or drinking. So incentive is will always get. So need drive incentive is there. Then relationship between performance, motivation and performance, like you can see here, there are situational motivation, ability, and perceptions role play, which increase the job satisfactions. तो ये मॉडल है जॉब satisfactions की, motivations की, which you can see that, right? That is called Mars model. ठीक है, Mars model आपकी. Look at this. This is also important. Then other motivations need, आप देख सकते हो, need, drive, efforts, performance, reward, and go to the need satisfactions. But in between, environment is also important. Opportunity, resources, goal, incentive, and ability. आपकी skill set is also equally important है. ठीक है. Then classification of motive at work. There are 2 type of motive हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी क्या है? ये सारे हंगर, थर्स्ट, पेन, बॉडी टेम्परेचर, ये प्राइमरी. सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी इज बेसिकली तो ये चीजों को आपको प्राइमरी सेकेंडरी, you can see your drive and reinforcement, right? You can there are many things are there, like you drive motivation reinforcement theory given by Thorndike, जो आप पढ़ सकते हो. reinforcement theory management given by Taylor, है ना, इसके पढ़ोगे. ह्यूमन और हिल्टन मेयो, है ना, ये इनकी थ्योरीज हैं. देन इसके बाद 1950 में आई जो आपकी मास्लो, मैक्लेलैंड, हर्जबर्ग, एल्डरफोर्ड, नीड बेस्ड कंटेंट थ्योरी. ठीक है, तो इनकी थ्योरी को नीड थ्योरी बोलते हैं.
और प्रोसेस थ्योरी मतलब प्रोसेस में, ये नीड है, नीड बेस्ड, अगर इंसान को नीड है उस नीड के हिसाब से। प्रोसेस में अगर कोई छेड़खानी हुई तो एफिशिएंसी है, तो दैट इज लाइक एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ब्रूम, एडम्स ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी। इम्पोर्टेंस इन इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, इवन से प्रोडक्टिविटी हो गई, स्टेबिलिटी है ना, पॉजिटिव वर्क कल्चर होगा, बेटर टीम प्ले, वर्क हार्मोनी, राइट। सो दिस इज यूनिट all about. Then unit 3 is talking about content and process theory and schedule of reinforcement. तो यहाँ मोटिवेशन थ्योरी, कंटेंट थ्योरी में ये देखिए कंटेंट थ्योरी कौन कौन सी है, प्रोसेस थ्योरी। तो कंटेंट थ्योरीज आर बेसिकली वी कैन से दिस थ्योरी आइडेंटिफाई पीपल नीड, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ। तो कंटेंट थ्योरी हो गई। प्रोसेस थ्योरी क्या है ना, प्रोसेस थ्योरी में thus basically initiated a directed behavior, basically relationship और dynamic, ठीक है। प्रोसेस थ्योरी में हमारी जो रिलेशनशिप और डायनामिक्स वो कितने अच्छे हैं, उस हिसाब से प्रोसेस थ्योरी का है। देन रेनफोर्समेंट थ्योरी, बेसिकली हाउ मच यू आर गेटिंग द रेनफोर्समेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और so that will keep us to motivate. So content theory, process theory and reinforcement theory, that is called outcome theories, right? So these are the theory. तो content theory के अंदर आपने मास्लो की पढ़ा होगा, सुना होगा। तो मास्लो has given 5 models like physiological needs, need for safety, need for social need, self-esteem, self-actualization. Self-actualization is a higher need, ठीक है। तो इसी तरह की मॉडल बनती है यहाँ पे, ऐसे मॉडल्स होती है नीड हायरार्की। ये बहुत ऊपर हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। और इसी तरह 5 ऐसे नीड होगी, ठीक है। यू कैन सी हियर, यू कैन फाइंड आउट ऐसे 5 तरह की नीड होगा, ठीक। तो प्राइमरी नीड, बेसिक नीड है क्या है ना, ये फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी नीड, सोशल नीड एंड एक्सटीम एंड सोशल। ये एज के हिसाब से भी, ठीक है। हमारी जो एज है, जैसे आप शुरू में अभी जॉब ढूंढ रहे हो, तो अभी आपकी सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड है, सैलरी चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, नीड्स हमें बेसिक नीड में अगर ये नीड फुलफिल होता है, देन पीपल लुक फॉर ए सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड्स, देन एक्सट्रीम। सोशल नीड्स मतलब फ्रेंड्स होना जरूरी है, ठीक है, रिलेशनशिप होनी जरूरी है। तो देन एक्सट्रीम नीड्स थोड़ा पावर, रिकॉग्निशन, अटेंशन, एप्रिसिएशन, राइट, ये सारे एक्सट्रीम। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच फुलफिलमेंट, ये रिटायरमेंट के टाइम पे ये सब कुछ हो चुका है, शादी, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये 5 नीड्स आपकी है, मास्लो ने दिया था। इसी तरह हर्जबर्ग हैज गिवन 2 फैक्टर थ्योरी, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स। आपको पढ़ना हर्जबर्ग, ये थोड़ा सा, ये जो थ्योरी है थोड़ा डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के लिए है। तो हाइजीन एंड मोटिवेटिंग, 10 हाइजीन फैक्टर, 10 मोटिवेटिंग फैक्टर टू इंक्रीज द मोटिवेशन। तो हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है ना, मोटिवेटिंग फैक्टर मीन्स आप देखोगे जैसे है ना, वर्किंग कंडीशंस हो गई, सैलरी बेनिफिट्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी, है ना, ये सारे आपकी हो गई मोटिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। हाइजीन फैक्टर्स, ये नहीं, दीज आर द हाइजीन फैक्टर, सैलरी बेनिफिट्स है। मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है ना, ऑटोनॉमी, फ्रीडम, चैलेंजिंग वर्क, है ना, दीज आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स, इसके अंदर 2 फैक्टर थ्योरी आप पढ़ना है। देन मैक्लेलैंड आल्सो गिवन द नीड, क्योंकि हमारी हर एक की प्राइमरी डोमिनेंट नीड होती है। ये डोमिनेंट नीड की बात करिए तो 3 तरह की नीड होती है, आइदर पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट। तो हर इंसान अगर इस तरह की डोमिनेंट नीड है, हमें उस हिसाब से उनको काम को असाइन करनी है और उस हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। तो मैक्लेलैंड नीड थ्योरी हो गई। देन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, हैकमैन एंड ओल्डहैम, ठीक है।
सो 1976 इन्होंने ये 5 कैरेक्टरिस्टिक मॉडल दिया था। जो जॉब के अंदर स्किल वैरायटी होनी चाहिए, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंट, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक। ठीक है, ये 5 चीजें होनी चाहिए। स्किल वैरायटी, कोई भी काम हो रहा है एक रूटीन काम ना हो। ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे होने चाहिए जो वैरायटी हो। ठीक है, देन जो छोटे से टास्क आइडेंटिटी और सिग्निफिकेंस, मतलब कोई भी छोटा काम उसका काम में गिना जाए। ऐसे बहुत सारे काम है ऑर्गेनाइजेशंस में जो गिनते नहीं है, ये काम है एक्चुअली। तो आइडेंटिटी और सिग्निफिकेंस आपकी होनी चाहिए। जो काम जो आप कर रहे हो उसका एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए, आइडेंटिटी परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आनी चाहिए, इसका मतलब। ठीक है, देन ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम्स। ठीक है, यस, कोई ठीक है, ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, जॉब फीडबैक, ये जो है आप क्रिएट कर सकते हो, ऑटोनॉमी एंड जॉब फ्रीडम। तो ये मेन डायमेंशंस हैं, ये चीजें कर सकते हो। देन इट विल क्रिएट द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द जॉब, लाइक इससे आपकी क्या हो रही है ना, एक मीनिंगफुलनेस हो रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिजल्ट्स, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स एंड ग्रोथ विच इज इंटरनली मोटिवेट आउटकम। तो जो ये जॉब को कैसे आप अच्छे बना सकते हो, सो दैट इट विल बी द जॉब इटसेल्फ विल क्रिएट मोटिवेशंस। ठीक है, तो हियर इज द फॉर्मूला मोटिवेशंस की, स्किल वैरायटी प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंट इनटू ऑटोनॉमी इनटू फीडबैक, तीनों प्लस मल्टीप्लाई बाय ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। ठीक है, so that will be there. देन इसके बाद प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी में ब्रूम थ्योरी, ब्रूम ने कहा एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटालिटी इनटू बैलेंस इक्वल टू मट। तो इन्होंने ब्रूम थ्योरी का एक मैं जिस्ट बताऊंगा, जिसमें वो कहता है कोई भी आप काम कर रहे हो उसका जो मेहनत के हिसाब से आप रिवॉर्ड दे रहे हो कि नहीं। अगर कम दोगे, ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम हो गई मेहनत के हिसाब से तो वो काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई काम के लिए मैंने 10 रुपया रखा, तो आप कितने मोटिवेट हो गए, नहीं हो गए। अगर उसी काम के लिए मैं 200-300 रुपया रखूंगा, 500 रुपया दूंगा या 1000 रुपया, तो मोटिवेटेड। ठीक है, तो इसी तरह एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी इनटू बैलेंस, बैलेंस मतलब इक्वालिटी उस तरह की होनी चाहिए, तभी जाके आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये है। और दिस इज ए वेरी कंटेम्पररी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इन ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट, जहां आप सही तरीके से आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली इक्विटी थ्योरी, एडम्स ने दिया था इक्विटी थ्योरी। यहाँ इक्विटी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सेम आपको ट्रांसपेरेंसी, इस तरह की आपको चीज इनसाइड, जैसे सेल्फ इनसाइड सेल्फ आउटसाइड, है ना। तो बाहर अंदर जो भी है आप क्लियर ट्रांसपेरेंसी, सेम लाइन होनी चाहिए, सेम लेवलिंग प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। So that is called equity theory, which you bring into the organizations, right? Then goal setting, जैसे मैंने कहा था पहले भी, गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की नीड क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी, देन व्हाट आर द गोल्स, है ना। नीड की बेसिस पे वही गोल बना दिया, गोल बन गई अब उनका, प्लस ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है, तो दोनों को मैच कर देंगे हम लोग। ठीक है, सो देन द पीपल विल वर्क। जो मेरी गोल, अगर मैंने जिंदगी में जो भी सोचा है, जो भी चाहता हूँ, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल हो सकता है। ठीक है, तो फिर वो मोटिवेट होके काम करेंगे। देन रेनफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है ना, यहाँ पे रेनफोर्समेंट थ्योरी है जिसमें पॉजिटिव, बीएफ स्किनर ने दिया था 1953 में, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, इन्होंने रेनफोर्समेंट की बात कही है, जो कोई भी एनवायरमेंट में हम अगर रेनफोर्समेंट दें, ठीक है, तो बिहेवियर हमारी ऑकरेंस होगी, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब है जो अप्रिसिएशन हो गया, फ्रिंज बेनिफिट, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, है ना। नेगेटिव मतलब जरूरी है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट ऑल्सो कभी कभी काम करता है, जिसका वर्क डेविएंट बिहेवियर है या डिसफंक्शनल बिहेवियर है, काम नहीं कर रहा है, तो उनको थोड़ा नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी देनी जरूरी है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पनिशमेंट मतलब जो है हमेशा पनिशमेंट इज बेसिकली
अनफेवरेबल, जहां पूरा आपने किसी को जॉब से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। नेगेटिव बिहेवियर में एक वार्निंग दे दिया बस इसमें। बट पनिशमेंट में जो है, पनिशमेंट में हम हमेशा उसको सस्पेंड, पूरी तरह एक्शन ले लें, ठीक है, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट हमेशा पॉजिटिव पनिशमेंट भी है, नेगेटिव पनिशमेंट में। पॉजिटिव पनिशमेंट हमेशा आउटकम पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव पनिशमेंट में हमेशा नेगेटिव ही होगी। तो पनिशमेंट इटसेल्फ इज अ नेगेटिव टर्म, but negative reinforcement, it is always increase the behavior, sometimes change the behavior, you need to think. Then extinctions is basically there is no, they stop employee, decline the performance, right? तो extinctions में भी एक तरीके से आप पनिशमेंट कह सकते हो। तो अगर रेनफोर्समेंट दोगे तभी बिहेवियर आएगा, नहीं तो एक्सटिंक्शंस हो जाएगी कोई। तो अब ये रेनफोर्समेंट को देना कैसे है, तो उसको देने के लिए रेशियो और इंटरवल की बात करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस देना है, इंटरमीडिएट देना है, तो फिक्स्ड इंटरवल जैसे रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल में देना है या फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल इंटरवल और वेरिएबल रेशियो, ठीक है। तो इंटरवल और रेशियो ये दोनों इंपॉर्टेंट है जब भी आप रेनफोर्समेंट दो, ठीक है। तो उसी हिसाब से बिहेवियर ऑल्सो चेंज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेनफोर्समेंट थ्योरी। Then organizational commitment. So this is organizational commitment. You can now last unit, commitment like a job satisfactions, the commitment to be there when there is a high level of motivations and the content, the commitment will also come. तो commitment में क्या है ना, एलन मेयर इन्होंने पायनियर है, इसने थ्री एस्पेक्ट ऑफ कमिटमेंट बताया था। जो इस कमिटमेंट जैसे ये है इफेक्टिव कमिटमेंट। इफेक्टिव कमिटमेंट का मतलब है जब व्हेन पीपल आर साइकोलॉजिकली इमोशनली इन्वॉल्व एंजॉयिंग द जॉब, राइट, in the organizations, right? So this is high level of commitment, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हर जगह पे ये लोग है। देन कंटिन्यूअस कमिटमेंट इज बेसिकली जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉई परसीव जो परसेप्शन ऑफ कॉस्ट एसोसिएट विथ लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंटिन्यूअस कमिटमेंट में ये सोचता है कि जे मैं अगर ये जॉब छोड़ूंगा या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे EMI देना है, पढ़ाना है, फाइनेंशियली नीड है, तो कॉस्ट अगर है इसको छोड़ने की, तो उसी वजह से वो काम कर रहा है समहाउ, है ना। तो कॉस्ट की एसोसिएट है, उसी वजह से जो कोई सैलरी मिल रहा है कोई बात नहीं, काम कर लेते। देन नॉर्मेटिव कमिटमेंट इज बेसिकली ऑब्लिगेशंस, किसी जो आपकी सुपरवाइजर है उन्होंने कोई एहसान किया है, ऑब्लिगेशंस हैं, तो इसी वजह से उसका लॉयल्टी है, कमिटमेंट है, ठीक है। तो इस तरह की 3 लेवल ऑफ कमिटमेंट है, इफेक्टिव, कंटिन्यूअस एंड नॉर्मेटिव कमिटमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, हाई रिलेशनशिप है। अगर ये दोनों साथ साथ है, कमिटमेंट सेटिस्फेक्शन है, देन कमिटमेंट आल्सो इंक्रीज, राइट। देन देयर आर सेवरल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। आप देखोगे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, यू कैन सी एज, टेन्योर, कितने साल रह रहे हो ऑर्गेनाइजेशंस में, ये इंपॉर्टेंट है। मैरिटल स्टेटस, है ना, मैरिटल स्टेटस की वजह से आपकी कमिटमेंट लेवल बढ़ेगा, हाई होगी, क्योंकि आपको शादी किया तो एजुकेशन, लोन, पढ़ाई, है ना, सब एवरीथिंग इज देयर। जेंडर में इसमें देखा गया वुमेन आर मोर कमिटमेंट देन मेन, ठीक है। तो वो चीज है। एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन के हिसाब से आपकी हायर, जितना हायर एजुकेशन, पढ़ाई जितना ज्यादा कर लोगे उतना maybe commitment. The level of education found negatively correlation between the commitment, right? But higher education is associated with the lower commitment. जितना ज्यादा पढ़ाई डिग्री है उतना कमिटमेंट कम आएगा, ये ईगो आ जाते हैं इंसान के अंदर। एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो सेवरल पर्सनल एट्रीब्यूट्स व्हिच like greater job satisfaction, work orientations, achievement, motivation, sense of competence, तो ये चीजें also it is great. Then work situation and organizational characteristic like job role,
and job characteristic also create the job satisfactions. ठीक है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी हो गई, कमिटमेंट अगर ये मिलता है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता चुका हूँ, देन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस है, सपोर्ट है, तो ये सारी चीजें, कल्चर, कंडीशन, वर्किंग कंडीशन व्हिच क्रिएट द जॉब सेटिस्फेक्शन। एक्सपीरियंस वाइज ऑल्सो, जैसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको जॉब में इन्वॉल्व करना, ठीक है, एक्सपीरियंस होगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन ऑल्सो समटाइम इंक्रीज, बट ज्यादातर जॉब सेटिस्फेक्शन है ना, इट इज ऑल्सो डिबेटेबल है, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है, लेकिन अगर सही प्रमोशन अपॉर्चुनिटी वगैरह अच्छा मिल रहा हो तो फिर कमिटमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन विल ऑलवेज देयर, ठीक है। एंड ट्रस्ट, हाँ, और एक चीज है कि जो यंग होते हैं ना ज्यादातर जॉब में, और फ्रेशर्स होते हैं, वो ढूंढते हैं कि जॉब सैलरी कहीं और जगह हो और कहाँ मिले, तो उनकी थोड़ा कमिटमेंट, जितना ज्यादा पुराना होगा उतना कमिटमेंट लेवल में भी बढ़ जाएगा, वो छोड़ के नहीं जाएंगे जॉब। एंड ट्रस्ट important है, trust, job satisfaction, so these are the important aspect. Then consequences of organizational commitment अगर नहीं होगा तो yes, impact on directly productivity है ना, performance, growth है ना, तो commitment is very very important to impact the organization. Then building organization commitment, कैसे पता चलेगा ना, commitment is always taking the self initiative of the persons. देन जस्टिस एंड सपोर्ट, ठीक है, तो ये है कि हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो जस्टिस एंड सपोर्ट आपको देना है व्हिच ब्रिंग द इफेक्टिव कमिटमेंट। देन शेयर इंटरेस्ट है ना, शेयर इंटरेस्ट, डेलीगेट ट्रस्ट है ना, कम ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है, सो दीज आर द एस्पेक्ट्स वेयर one can develop the organization commitment. Okay. So any doubt, anything you want to ask, please. This is all from my side. कोई डाउट है, कुछ है, पूछना है? सर सर ये ब्लॉक 2 का ओवरव्यू पूरा हो गया है ना? ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, और किसी के पास ब्लॉक 4 का मेरे पास है नहीं यूनिट, अगर किसी के पास है तो मेरे को शेयर करना। मैंने भी देखा सर डाउनलोड करके, तो उसमें भी ब्लॉक 3 तक ही है। हाँ, ब्लॉक 4 का था नहीं। हाँ, मेरे पहले था, तो पता नहीं किसी ने मेरे को शेयर किया था, अगर किसी के पास हो तो भेज देना। राइट, और सर एक एनी चीज अदर और थी डाउट? क्वेरी कि जो नेक्स्ट वाला क्लास है, जो ह्यूमन रिसोर्स वाला, वो पॉसिबल है सर 4 o'clock करने के लिए? क्योंकि 12 वाले स्लॉट में ना दूसरे सब्जेक्ट भी हैं थोड़ा, फर्स्ट ईयर वाले भी, तो वो भी कुछ लोग तो कर रहे हैं आपके साथ जिनका तो होना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं है, हमें तो अलग कुछ अलग दिया था, एग्जाम इन्होंने मर्ज कर दिया शायद। मर्ज कर दिया ना सर, वही है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप सुन लो, ये इसकी शायद वो इवनिंग में पॉसिबल नहीं है सर, 12 इवनिंग वाला में जो है? ऑलरेडी मैं 3 क्लास ले रहा हूँ ना, तो मेरे को आई लिटिल टायर्ड। अच्छा, आफ्टर 4 मतलब कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है? अगर फिर ऐसा पॉसिबल है सर, इसी में ही कर लिया जाए, मतलब बिफोर 12 थोड़ा जो भी डिस्कशन होना है हाँ, एक साथ। 12 में 1 घंटा में 40 मिनट्स आई विल डिस्कस, देन देयर इज अ डाउट। 12 के बाद? हाँ, 12 के बाद चलो। लेकिन वो भी 12 बजे स्टार्ट हो जाता है ना सर, ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इसको हम 11 बजे अगर प्लान कर लें 10 से, क्योंकि हमारा मोस्टली ये 11 बजे तक हो जाता है ये वाला, तो 11 से 12 वो वाला रख लें, दूसरा दोनों एक साथ मतलब। अभी चाह तो हम अभी भी कर सकते हैं इसको, हाँ हाँ सर, ठीक है ना, श्योर 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 तो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, 11:30 श्योर से कर श्योर। लेते हैं, ठीक है, 11:30 से। 11:30। हाँ, 11:30 से दूसरा सेशन इसका करके
खत्म कर देते एक हैं। ओवर भी हो जाएगा। तो ठीक है, कल कुछ कराया था सर आपने उसमें? कल तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था इसी वजह से। कल मैंने पढ़ाया था वही वाला जो क्या था हमने, जो यूनिट 1 था, जो ब्लॉक अच्छा 1। अच्छा अच्छा। तो अभी आज 30 मिनट्स का कर लें सर, ऐसा है? हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। या 12 बजे, इसलिए क्योंकि शेड्यूल दे रखा है ना, लोग ज्वाइन भी करते हैं उस हिसाब से। बस सर क्लैश हो रहा है, बात ये है। बाकी लोग बताओ। सर, जैसे भी ठीक रहे आप देख लीजिए, बाकी औरों को भी लॉस ना हो। सर आई थिंक वो स्केड्यूल सबके पास लाइक सेम ही होगा, तो फिर चेंजेस करने में बाकी सबको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 12 बजे करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सर ओके। हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें अगर लोग ज्वाइन करें तो अनाउंसमेंट पॉसिबल है ना सर? हाँ नेक्स्ट क्लास के लिए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, पहले बता देना। जो ये कंटिन्यूअसली जो हो जाएगा, ये 1.25 घंटा तक ये कर लिया, आधा घंटा और उसमें दे दिया तो हो गया। ठीक है, ठीक है। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? If there is no doubt, then we'll take a break here, right? And see you at 12, right? Okay, bye. 12 to 12:10 तक मैक्सिमम, ठीक है, ज्वाइन करना 12:10 तक शुरू करेंगे। यस